Hello viewers, today we are going to design a column which is eccentrically loaded. So as you can see in the diagram, there are many columns. One centered column is fully centrally loaded or axially loaded column, but other columns which are at the corners or at the side of this structure, those are you can say eccentrically loaded columns. So today we will see the design of eccentrically loaded column. So what is column? First of all, you should understand it. First is a vertically or horizontal member subjected to only axial compressive load, that is called as a compression member or column. Second, effective length of a member loaded with axial compression load, dimension or length exceeds 3 times of its least lateral dimension. That member is known as column. Third, if effective length of a column is less than 3 times its least lateral dimension, then it is called as pedestal. So today we will see the conditions of eccentricity of the loads, how the load may be placed on any column. There are 3 conditions of loading. So we will see first of all axially loaded column and eccentrically loaded column. You can see here, as in this diagram, load is at the centroid of this column, means at the crossing of x-axis and y-axis or the centroid. So this will be called as axially loaded column. And while here you can see in the next cross section, load is on x-axis, eccentricity is Ex. Then we will say it axial eccentrically loaded column, and eccentricity is यूनिएक्सियल, एक एक्सिस के ऊपर एसेंट्रिक है. और आप तीसरा डायग्राम देख रहे हैं, तीसरा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे. इस तीसरे क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि जो एसेंट्रिसिटी है वो किसी भी एक्सिस के ऊपर नहीं है, ना तो एक्स एक्सिस के ऊपर है और नहीं ये वाई एक्सिस के ऊपर है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं. तो एसेंट्रिसिटी कहीं इन बिटवीन है, दोनों एक्सिस को छोड़ते हुए. तो हम ऐसे कॉलम को भी एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम कहेंगे, और ऐसे कॉलम की हम डिज़ाइन किस तरीके से करें ये हम देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि किसी भी कॉलम के ऊपर एसेंट्रिसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है. और इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे. जो ये वाला डायग्राम है, इसके आधार पे हम इसका एनालिसिस देखेंगे कि स्ट्रेसेस जो है उनकी सिचुएशन क्या हो सकती है. आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे लिए रिक्वायर्ड है कॉलम में किसी में टेंसाइल स्ट्रेस पैदा नहीं होना चाहिए. यदि किसी भी कॉलम में टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होता है किसी भी फेस के ऊपर, दिस इज़ अनवांटेड. तो टेंसाइल स्ट्रेस पैदा ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे एनालिसिस करेंगे उसका. तो इसके लिए हम देखेंगे, आपको ध्यान हो सिम्पसन्स मिडिल थर्ड रूल, जिसको हम मैसनरी के कॉलम्स या चिमनी जब डिज़ाइन करते हैं तो चिमनी की स्टेबिलिटी, जो मैसनरी चिमनीज़ हैं उनकी डिज़ाइन करते समय हम ध्यान रखते हैं कि उनमें कहीं भी टेंसाइल स्ट्रेस पैदा ना हो, क्योंकि रीइंफोर्समेंट उनको हम प्रोवाइड नहीं कराते किसी भी तरीके से. और ब्रिक मैसनरी की चिमनी बनती हैं तो उसमें ये रिक्वायर्ड होता है कि कहीं भी टेंसाइल स्ट्रेस पैदा ना हो किसी भी कंडीशन में. यदि टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगी तो डेफिनेटली वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा. तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं उनको हम एक बार एनालिसिस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आप देख सकते हो, जैसे यदि एक्सियली लोडेड कॉलम है जिसके सेंट्रॉइड के ऊपर फोर्स लगा हुआ है, जैसे इस फिगर में, सो डायरेक्ट स्ट्रेस यू कैन से
this will be the direct stress in this column, and the direct stress will be equal to, as you can see here, sigma D will be P divided by A. P is load at the centroid, and A is sectional area of this column. So this will be the stress on the column. But if load is eccentric, as you can see here in this picture, eccentricity is E, suppose, and then what will happen? Banding will be created in this column, and due to banding, there will be banding stress also. So there will be two type of stresses. One will be direct stress, which is P divided by A, and another will be banding stress. That banding stress will be M by Z. M is moment created in this column due to eccentricity, and moment will be equal to P multiplied by the eccentricity, and section modulus will be the section modulus of this column section will be which will be equal to BD square by 6. So we can see the different diagrams of stresses. Suppose the eccentricity is E, then there will be some negative stress also. So direct stress plus banding stress, both joining at the one phase or adding on the of these two stresses, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बैंडिंग स्ट्रेस, इन दोनों का टोटल पॉजिटिव ही होगा हमेशा। लेकिन जब हम उसको डिडक्ट करेंगे, यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस में से बैंडिंग स्ट्रेस कम करेंगे, तो वो स्ट्रेस कम हो जाएगा। जैसे आप इसमें देख रहे हो, इस फेस के ऊपर स्ट्रेस यहाँ कम दिखाई दे रहा है और इस फेस के ऊपर स्ट्रेस यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कंडीशन की बात करेंगे कि डायरेक्ट स्ट्रेस और बैंडिंग स्ट्रेस दोनों की मात्रा इक्वल हो। यदि दोनों बराबर मात्रा में स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं तो क्या होगा, ऐड करेंगे तब तो वो स्ट्रेस डबल हो जाएगी, दोनों का ऐड हो जाएगा। लेकिन जब डिडक्ट करेंगे तो ये इस फेस के ऊपर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। सो हमारा जो रिक्वायरमेंट है कि स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस शुड बी जीरो, मीन्स नेगेटिव स्ट्रेस नहीं आना चाहिए इसके ऊपर। एंड नेगेटिव स्ट्रेस का मतलब हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे टेंसाइल स्ट्रेस को। सो जो हमारे रिक्वायर्ड कंडीशन है वो ये है बैलेंस कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन, मिडिल वाली, जिसमें कि टेंसाइल स्ट्रेस जीरो हो। और अदर कंडीशन जो है वो क्या बनेगी कि स्ट्रेसेस जो है इस तरीके से हैं कि जब ऐड करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा और डिडक्ट करेंगे तो नेगेटिव में हो जाएगी। तो इस तरीके से ये शो कर रहा है कि इस फेस के ऊपर टेंशन आ रहा है और इस फेस के ऊपर ये कंप्रेशन है। तो हमारी जो ये सिचुएशन है, ये कंडीशन जिसके लिए हमने रिक्वायर्ड है कि टेंसाइल स्ट्रेस जीरो हो, तो उसके लिए हम इस कॉलम का एनालिसिस करके देखेंगे। इट इज़ कॉल्ड एज सिम्पसन्स मिडिल थर्ड रूल। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हम डायरेक्ट स्ट्रेस और बैंडिंग स्ट्रेस दोनों को लेंगे। सो टोटल रिजल्टेंट स्ट्रेस विल बी सिग्मा आर विल बी इक्वल टू सिग्मा डी डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस सिग्मा बी बैंडिंग स्ट्रेस। So sigma D is P by A, as we have already seen it, and sigma B is due to moment created in this column, and moment M will be equal to load into eccentricity, that is P into E. Now using banding equation, हम banding equation का यूज़ करते हैं मोस्टली किसी भी RCC की डिज़ाइन में। सो हम banding equation का जो ये फर्स्ट टू टर्म्स हैं, M over I equal to sigma over Y, हम इन दो टर्म्स का यहाँ पे यूज करेंगे। सो एम मोमेंट विल बी इक्वल टू आई ओवर वाई इंटू सिग्मा, एंड एज यू कैन से और यू नो आई ओवर वाई, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई वाई एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस, दिस इक्वल्स टू सेक्शन मॉडुलस जेड। सो एम विल बी इक्वल टू यू कैन से सिग्मा जेड और सेक्शन मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई द मैक्सिमम डेवलपिंग स्ट्रेस। So sigma you can say will be equal to M by Z. This is the binding stress sigma B. Now for resultant stress हम देखेंगे
कि एक फेस के ऊपर तो दोनों स्ट्रेसेस ऐड हो रही हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा इस फेस के ऊपर तो दोनों स्ट्रेसेस ऐड हो जाएंगी, ये कंप्रेसिव नेचर की हैं दोनों। और यहाँ पे चूंकि बैंडिंग स्ट्रेस जो है टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगी इस फेस के ऊपर, तो इस फेस के ऊपर ये डिडक्ट हो जाएंगी। तो आप कह सकते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस जो है सिग्मा आर विल बी इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ए इज सेक्शन, बी इंटू डी, प्लस माइनस एम बाई जेड। अब इनको प्लस माइनस जो है जब हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो स्ट्रेस पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि एक फेस जहां कंप्रेशन ये जिस साइड में एसेंट्रिसिटी है लोड की, उस साइड में स्ट्रेस की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। सो पी बाई ए प्लस एम बाई जेड, दिस विल बी ऑन कंप्रेसिव साइड और एसेंट्रिसिटी साइड, and on other face where eccentricity is not there और लोड जिस फेस की तरफ नहीं लगा हुआ है उस तरफ क्या कितना स्ट्रेस हो जाएगी, P बाई ए माइनस एम बाई जेड। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रेस को दोनों फेस के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि जो स्ट्रेस है इसी को हम रिजॉल्व कर लेते हैं, P बाई बी डी प्लस माइनस P इंटू ई इसेंट्रिसिटी, दिस इज मोमेंट, डिवाइडेड बाई बी डी क्यूब बाई 12I डिवाइडेड बाई वाई। सो वाई जो है एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस इज d by 2. So on solving this equation you find P by BD plus minus P into E over BD square by 6, or you can say in this form you can resolve it, P divided by BD plus minus 6P into E divided by BD square. So now you can take common P divided by BD of this equation. So taking common P by BD, or you can say P by A, BD is A. So you can take out or take common P by A, which will be equal to 1 plus minus 6E divided by D, as you can see here. So if sigma R is 0, यदि रिजल्टेंट स्ट्रेस 0 है, तब उस कंडीशन के लिए, क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड है कि रिजल्टेंट स्ट्रेस नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए बैलेंस कंडीशन क्या होगी, सिग्मा आर इज इक्वल टू 0। सो अकॉर्डिंग टू दिस हम यदि इस इक्वेशन को 0 के बराबर कर दें तो क्या होगा, P बाई ए हटा देंगे हम यहाँ पे, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 1 प्लस माइनस 6E बाई डी विल बी इक्वल टू 0 एंड d प्लस माइनस 6E बाई डी, हम यदि इसको सॉल्व कर लें विल बी इक्वल टू 0, देन व्हाट विल बी देयर, d इक्वल टू 6 टाइम्स E, और यदि एसेंट्रिसिटी निकालें इस कंडीशन के लिए, सो एसेंट्रिसिटी E विल बी इक्वल टू d बाई 6। d बाई 6 का मतलब क्या हुआ, एसेंट्रिसिटी सेंट्रॉइड के एक साइड में जो है वो d बाई 6 है, और यदि सेंट्रॉइड के दूसरी साइड में भी d बाई 3 हो तो d बाई 3 प्लस d बाई 3, यानी दोनों साइड सेंट्रॉइड के आप d बाई 3 एसेंट्रिसिटी अलाउ कर रहे हैं एंड d बाई 6 अलाउ कर रहे हैं दोनों तरफ, तो यदि दोनों को टोटल करेंगे दिस कम्स आउट टू बी d बाई 6। सो द एसेंट्रिसिटी जो है आप कह सकते हैं किसी भी कॉलम में यदि मिडिल थर्ड पार्ट में है, then there will be no tension at any face of any column. Now after this you can understand the condition of the Simpson's middle third rule. Now we will design a column, so we will take a problem for this purpose. Design a short RC column. It has effective length of 3.5 meter. This is required to support axial load of 1750 किलोन्यूटन, 1750 किलोन्यूटन का लोड जिसको इसको कॉलम को सपोर्ट करना है। डिजाइन यूजिंग M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। सो दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम। नाउ इन फर्स्ट स्टेप assume percentage of steel for this column, and this will be referred to clause number 26.5.3 IS 456/2000
and now you can find out the area of the compressive steel, because you have chosen it 1% according to this clause. Then ASC means area of compressive steel, ASC will be equal to 0.01 AG. AG is gross section of this column, which is equal to BD. So AC will be equal to means area of concrete will be equal to AG means gross section of the column माइनस ASC, स्टील का एरिया जो है उसको कम कर देंगे ग्रॉस सेक्शन में से, तो वो हो जाएगा AC, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, एंड इट विल कम आउट टू बी 0.99 AG, ग्रॉस सेक्शन का 0.99% ये रह जाएगा। नाउ मिनिमम एसेंट्रिसिटी जो है वो रिक्वायर्ड क्या है इस कॉलम के लिए, आप क्लॉज नंबर 25.4 के अकॉर्डिंग E minimum should be equal to L by 500 plus B. B means least lateral dimension divided by 30. So it should be equal to or less than 20 mm. यदि ऐसा नहीं है 20 mm के बराबर या 20 mm से कम एसेंट्रिसिटी नहीं है, then you have to revise the section again. So आप अपनी डायमेंशंस को सेट करेंगे और उसको कॉलम को दोबारा से उसकी साइज जो है उसे डिसाइड करेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम कितनी होगी। सो इन स्टेप 2 PU विल बी इक्वल टू 0.4 FCK इंटू AC, मीन्स जो कंक्रीट है उसका स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, प्लस चूंकि स्टील है वो भी इसमें कंप्रेसिव लोड को बियर करेगा, सो 0.67 FY इंटू ASC। सो इन दोनों का जो टोटल होगा दैट विल बी अल्टीमेट लोड ऑन दिस कॉलम, एंड अल्टीमेट लोड इज गिवन एज 1750 किलो न्यूटन। सो आप इनको इक्वेट कर सकते हैं 1750 इंटू 10⁻³ न्यूटन में, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। दिस विल बी इक्वल टू 0.4 FCK 20 and 0.99 AG, means area of concrete is 0.99 AG, gross section of the column, plus 0.67 into 415, this is FY, and 0.01 AG, this is area of steel in compression, so this is ASC. So you can find out the AG means gross area of the column. So AG comes out to be on solving 163,543 mm square. अब यदि इस कॉलम को हम मान लें स्क्वायर कॉलम, then you can find out the side. So size of the side will be under the root 163,543. तो सॉल्व करने पे ये निकल के आता है 404 mm. अब इसको राउंड ऑफ करके यू कैन एज्यूम 410 mm, 410 mm इसको आप राउंड ऑफ करके एज्यूम कर सकते हैं। सो नाउ फाइंड आउट द प्रोवाइडेड एरिया ऑफ द कॉलम, एंड प्रोवाइडेड एरिया ऑफ द कॉलम AG विल बी इक्वल टू 410 मल्टीप्लाइड बाई 410, दिस विल बी 168,100 mm square. Now in step 3 you have to calculate the ASC. Directly you can find out the ASC from 1% AG, but we will design it क्योंकि यदि ये एसेंट्रिसिटी जो है वो अंडर 20 नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको चेक कर लें कि इसकी जो एसेंट्रिसिटी है, मिनिमम एसेंट्रिसिटी, इट शुड बी अंडर दिस 20 mm. सो यदि ये 20 mm के अंडर में है तो ओके है, नहीं तो आपको सेक्शन को दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। सो एसेंट्रिसिटी को भी चेक कर लें आप। जो एसेंट्रिसिटी है L मीन्स लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाई 500 प्लस B लीस्ट लैटरल डायमेंशन डिवाइडेड बाई 30, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 20। यदि ये है देन इट्स ओके, नहीं तो आपको सेक्शन को फिर से एक बार रिवाइज करके और दोबारा से एसेंट्रिसिटी चेक करना होगा। यदि अंडर 20 है तो आप इस फॉर्मूले से इस कॉलम को डिजाइन कर सकते हैं इस मेथड से। सो फॉर एरिया ऑफ स्टील ASC you can see the equation which we have already used for ultimate load.
So PU will be equal to 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, जो ग्रॉस एरिया आपने प्रोवाइड किया आप उसका यूज करेंगे और AC की वैल्यू जो है ग्रॉस एरिया माइनस ASC करके आप यहाँ पुट करेंगे और इसी तरीके से आप ये जो है इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे और ASC की वैल्यू इससे निकाल लेंगे। सो ASC विल कम आउट टू बी 1500 mm square on resolving. Now if we use 16 mm dia bars, area of one bar will be 201 mm square and you have not to select bars less than 12 mm 12 mm dia of the bars। इससे कम की बार आपको किसी भी कॉलम के लिए सेलेक्ट नहीं करनी। So number of bars you can find out. So total area of steel ASC divided by area of one bar. So आप देख सकते हैं सॉल्व करने पे 1500 डिवाइडेड बाई 201, दिस कम्स आउट टू बी 7.46 bars. Say 8 number of bars we will provide for this column. So ASC provided you can calculate. If we are providing 16 mm dia bars, then the provided steel will be pi by 4 into 16 square into 8 numbers. So this comes out to be 1608 mm square. Now in step 4 we will find out the spacing for transverse reinforcement using clause number 26.5.3. So pitch of ties or transverse reinforcement, you can say least of following we will select. So first is 300 mm, then second is 16 time dia of the bars. So आप देख सकते हैं यहाँ 16 into 16, this is 256 mm, and third is least lateral dimension which is 410. तो हम इन तीनों में से जो भी कम होगा, सबसे कम होगा, उसको एज स्पेसिंग यूज करेंगे लेटरल टाइज के लिए। सो ये इन तीनों का कम जो है कम से कम दैट इज 256 mm. सो वी विल सेलेक्ट स्पेसिंग ऑफ द लेटरल टाइज 256 mm CC, center to center. Now if we use 0.25 into dia of the main bar, this will be the diameter of the lateral ties. So this comes out to be 4 mm, but we cannot provide the dia of bar less than 6 mm. So provide the 6 mm dia bars in lateral reinforcement at the rate of 256 mm CC. So this is all about the design of a column. So thank you very much. I think you will be able to design a column based on IS 456 2000. So please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.